Welcome to a brand new episode with Akash Chopra, dear friend, now social media sensation, one of the most talked about and listened to and viewed people in the social media age. Akash Vani is now household name, and we will actually be using his brand name for Trailblazers Conclave when he graces the conclave in March. Akash, welcome. Welcome, and thank you very much for your time. Good to see you back after a good Egyptian break. I know. So, Thank you so much. that Thank you so much, Boria, for the lovely introduction. Of course, you have been very, very kind and good to be back, man. Yeah, I mean, so nice to see the evolution of Akash Chopra and what you've been able to do. Fantastic. This is a show where we'll set up all things cricket for the year 2026. Akash, the first competition, the first real competition for this year is the men's T20. Do you give us a chance? How do you look at it? Uh, do you reckon that this is a good enough side? Where do you stand on the Shubman Gill omission? Is this a team that has the ability? Are you worried about Surya? So punching all of this in one question. Okay. To start the first, or rather answer the first question, I think this team has what it takes to lift the trophy. When you look at the strengths and you also analyze the weaknesses, you will find that strengths, I mean, are far too many, and weaknesses aren't as glaring. There is nothing that you can actually point your finger at and say that this is something that's seriously wrong with this team. It seems it's like a perfect unit. But having said that, this tournament has taught us something over a period of time, that it's not just a coincidence that no team has gone on to win the tournament back to back. No team has been able to defend their crown. No home team has won. That means home advantage isn't as significant as it might be in other formats. So it has to be a perfect storm. And we have experienced this once, that you can win 10 games on the bounce, but you can still lose the 11th one and you lose the World Cup. And that's one story that's unfinished. So similarly here, a lot of things have to come together at the right time, and then you can lift the trophy. So will India lift the trophy? We don't know. A lot of things will have to, like we just mentioned, have to actually fall in place. But is this the team that can lift the trophy? Of course it can. And to extend that argument, if whoever goes on to win the trophy, or put any team against us that is participating in this tournament, put us in a 5-match series with any team, India, you will back India to win that series, every single series, irrespective of where it is played. So that is where the strength is, that you actually validate and acknowledge. But winning a T20 World Cup is a Yeah. massive, massive thing. Correct. And I kind of agree with you that it's a one off game and one cannot predict in a T20 knockout format which team wins. There are many good teams out there. Akash, आप शुभमन गिल वाला मामले में कहाँ पे हो? I mean, do you look at it as a mistake that the selectors did in September, that they got him into the mix? Or was it a fair experiment that was done and now a corrective has been put in place क्योंकि उन्होंने जो opportunities उनको मिला था, he did not justify, so the selectors have now overlooked him and gone back to Sanju Samson and Abhishek Sharma. Where do you stand on the Shubman Gill matter? मुझे ऐसा लगता है कि ना, पहली बात तो ये जब किया जाए, और जब इतना बड़ा आप डिसीजन ले रहे हैं जिसमें आप सिर्फ खिलाड़ी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको वाइस कप्तान बना रहे हैं, एक जो परफॉर्म लगातार करता आ रहा है, आपकी वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिसकी आप इतनी बात करते हैं, उसको वो रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, किसी और को लाना चाहते हैं, ही कुड बी एनी वन, इट कुड बी शुभमन गिल, इट कुड बी एनी वन, और आप उसको वाइस कप्तान बना देते हैं स्ट्रेट अवे कि दैट ही इज नॉट जस्ट हियर एज अ टेम्परेरी मेजर, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, बोरिया, कि ये एक्सपेरिमेंट किया था, देखते हैं होगा, पता चलेगा. इट वॉज एन एंडोर्समेंट कि ये हमारा फ्यूचर है, एंड दैट फ्यूचर कैन नॉट बी 3 months. Future has to be a slightly longer vision. So I feel जो उन्होंने किया था, I found it a little discomforting at that point in time, for a simple reason कि उनके स्थान पर पहले तो संजू अच्छा कर रहे थे. दूसरी बात, अगर कंटिन्यूटी की उन्होंने बात की थी कि हमने उनको इसलिए लाया है क्योंकि कंटिन्यूटी चाहिए, तो यशस्वी जायसवाल एक्चुअली डिजर्व दैट स्पॉट बिफोर हिम, क्योंकि वो 2024 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे. तो अगर आपको सिर्फ एक ओपनर चाहिए था और कंटिन्यूटी चाहिए थी, और आपको संजू नहीं चाहिए थे क्योंकि मे बी देयर वाज अ पैटर्न डेवलपिंग अगेंस्ट इंग्लैंड एंड ऑल ऑफ दैट, ओके, आई कैन स्टिल क्रिकेटिंग आर्ग्यूमेंट, आई कैन लिव विद इट, पर फिर वो यशस्वी का नंबर बनता था. लेकिन जब आपने पिक किया, तो देन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट यू स्टार्ट रैकिंग योर ब्रेन्स एंड यू से क्या किया होगा. तो उसका जो मेरी जो हाइपोथेसिस था वो ये था, कि जब आप मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेलते हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट यू प्ले, आप पिछला वर्ल्ड कप उठा के देखिए, आप उससे पिछला वर्ल्ड कप उठा के देखिए, उससे पिछला वर्ल्ड कप उठा के देखिए, यू विल फाइंड ओनली हैंडफुल ऑफ 200+ स्कोर्स स्कोर्ड बाय एनीवन.
अगेंस्ट अ डिसेंट ऑपोजिशन. इट डज नॉट हैपन. पूरा एशिया कप आप खेल गए, 201 बार भी नहीं बना. सो यू नो कि ऐसे वाले मैचेस में यू माइट नीड एन एंकर. हमें सारे स्मैशर नहीं चाहिए, हमें एक एंकर भी चाहिए, और उसमें शुभमन गिल एक्चुअली कैन फुलफिल दैट रोल. तो जब अब ये कोर्स करेक्शन आप कह सकते हैं इसको, पर कोर्स करेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट द स्पॉट, इट इज अ कोर्स करेक्शन ऑफ अ फिलॉसफी, ऑफ एन आइडियोलॉजी, कि हम अब एंकर नहीं ढूंढ रहे. यानी कि आपको 3 महीने पहले एंकर चाहिए था, उस एंकर के साथ आप एशिया कप जीते हैं. एंड आई डोंट थिंक कि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली जिनको अगर वो बिल्कुल इस भुना नहीं पाए, इस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया. आई डोंट थिंक दैट्स द केस. कहीं कहीं पे रन्स बने हैं, बहुत सारे नहीं बने, दैट्स करेक्ट, बट यू आर ऑल्सो प्लेइंग 140 गेम्स इन द एशिया कप. और थोड़े से अनफॉर्चुनेट भी थे कि जहां रन बन रहे थे दोनों जगह बारिश भी आ गई. सो आई डोंट थिंक इट्स एन इंडाइटमेंट कि ये बंदा अब T20 हमारे लिए नहीं खेल सकता. आई थिंक यहाँ पे आइडियोलॉजिकल चेंज किया है. इट्स अ साइस्मिक शिफ्ट कि फ्रॉम वन एंड यू गॉन टू द अदर एंड एंड यू हैव डिस्कार्डेड द फिलॉसफी कि मुझे अब एंकर चाहिए नहीं. और एंकर शायद इसलिए सोचा होगा ना बोरिया कि वर्ल्ड कप सारा चल रहा था, विराट कोहली कुछ नहीं कर रहे थे, देन कम्स द फाइनल एंड देन आर एंकर एक्चुअली एंकर्स द शिप एंड सेल्स अस होम. सो इन दैट रिस्पेक्ट शुभमन कुड बी दैट गाय. तो ये तो बहुत बड़ा मतलब इट्स अ ह्यूज शिफ्ट जिस दिशा में सडनली 3 महीने पहले जो किया, 3 महीने के बाद जो किया है. एक और चीज़ जो स्टैंड आउट करती है, आई टेक 20 मोर सेकंड्स, वो ये कि उस समय जो थे चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स जो थे वो तो सही वही थे, पर बाकी तब से सिलेक्शन कमेटी में भी थोड़ा बदलाव हुआ है. तो वो हो सकता है कि वो सोच अलग थी, ये उस सोच को ये लोग एंडोर्स नहीं कर रहे थे, एंड देयरफॉर अ ब्रांड न्यू डिसीजन. That's a very interesting point you made. I mean, the selection committee changed except the chairman of selectors. मैंने ये point सोचा नहीं था, but ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा कि दिशा शायद बदल गया होगा, फिलोसफी बदल गया होगा. शुभमन गिल पे बात कर रहे हैं तो ये खत्म कर लेते हैं ऑन शुभमन गिल कि ये जो उन्होंने अभी कहा है एज रेड बॉल कैप्टन की ये जो 15 दिन का कैंप, देखो मैं 15 दिन शायद लिटरल फिगर है, वो 15 दिन इंडियन क्रिकेट में नहीं मिलता है, बट आई एक्चुअली एग्री विद हिम कि कैंप देखो 4 दिन में आप ऑस्ट्रेलिया से आके 4 दिन में ईडन टेस्ट खेल गए, आप दुबई से सीधा अहमदाबाद पहुंच गए टेस्ट खेलने के लिए. ये तो होना नहीं चाहिए. अगर आप रेड बॉल क्रिकेट को प्राइमेसी देना चाहते हो, सो देन डेफिनेटली एटलीस्ट 7 days, 10 days, 12 days, whatever it is. Where do you stand on this, Akash? I am with you. I am with Shubman. क्योंकि see, we don't have to do just lip service. When we talk about giving priority or prioritizing one format over the other, and we think that it is very important. अगर important है तो देन गो द होल यार्ड कि भैया फिर मुझे ये सारी चीज़ें करनी होगी क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहले होता था, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते थे तो उससे पहले आपको 2 साइड गेम्स खेलने होते थे, आप तैयार होते थे क्योंकि ऑफकोर्स द इंटरनेशनल कैलेंडर अलाउड यू दैट काइंड ऑफ लग्जरी एज वेल. पर व्हेन आई लुक एट इंडिया एंड वी लुक एट आवरसेल्व्स BCCI, वी आर अ फेयरली स्ट्रॉन्ग बोर्ड दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लेइंग 3 एक्स्ट्रा गेम्स. हाँ, हमारे को ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है. तो अगर हम ये चाहें कि वी नीड टू प्रिपेयर वेल, then we can create a window, and preparation has become a very integral part of India's I mean campaigns in the past. हम वही टीम है जिसने वाका जो था वो 1 हफ्ते के लिए रेंट पे ले लिया. I mean कौन सी दुनिया में टीम ऐसा कर पाई है, हमने किया है. एंड वी कम फ्रॉम अ प्लेस जहां पे हमारे पास बॉल्स नहीं होती थी प्रैक्टिस करने के लिए. कुकुबुरा तो मैच टेस्ट से करते थे. आई कम फ्रॉम दैट जनरेशन टू दिस जनरेशन वेयर वी आर एक्चुअली रेंटिंग आउट एन एंटायर स्टेडियम इन अ डिफरेंट कंट्री सो दैट वी कैन प्रिपेयर वेल. सी ऐसा नहीं हुआ कि हमने वो प्रेपरेशन की तो हम जीत गए, पर प्रेपरेशन में हमने वी डिडंट लीव अ स्टोन अनटर्न्ड. सो शुभमन गिल जो कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को जैसे अभी आपने भी कहा प्राइमेसी देनी है, वी वांट टू प्रायोरिटाइज इट, दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल, क्योंकि ये हमारी लेगेसी डिसाइड करेगा, डिफाइन करेगा, तो फिर फाइंड अ विंडो यार. इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जंप कर रहे हैं. विद इन 3 days यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट फॉर्मेट. द demands of a form or these formats are very very different. और yes, there was a time in the past जहाँ मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स आपको मिल गए और बहुत सक्सेसफुल थे, विराट कोहली being one, रोहित शर्मा later in his career became the second guy. मोस्ट पीपल टेंड टू स्ट्रगल यार. तो अगर यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल या किसी और को ये होना है, आई थिंक वी नीड टू गिव देम द टाइम टू प्रिपेयर वेल. अगर वो प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है तो फिर अगर वो फेल होंगे तो इट्स अ फंक्शन ऑफ यू नॉट प्रिपेयरिंग वेल एज वेल. बैक टू T20, आप सूर्या को कैसे देखते हो? बिकॉज एट वन पॉइंट वर्ल्ड्स नंबर 1 बैटर हैज स्ट्रगल्ड. एज कैप्टन आई थॉट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव एज अ लीडर.
in that interview to me said very clearly after the Asia Cup win कि देखो बहुत टेंशन था, ड्रेसिंग रूम में पेस अप एंड डाउन कर रहे थे, पॉलिटिकली चार्ज मैच था, बट एज अ बैटर सूर्य कुमार यादव खुद जानते हैं कि ही नीड्स टू डू बेटर. हाउ आर यू सीइंग हिज प्लेइंग डोमेस्टिक? एज आई मीन क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है. हाउ आर यू सीइंग सूर्य कुमार यादव? विल ही फील द प्रेशर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? सी प्रेशर तो है. ये कहना मतलब ये बाकी सब बातें होती हैं कि कहें कि नहीं कोई बात नहीं, टीम अच्छा कर रही है जो कि कर रही है, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसलिए वो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा हुआ है, जहाँ जाते हैं जीत के आते हैं, कुछ नहीं हारे उनकी कप्तानी में. सो कूडोज टू हिम एंड एक्कोलेट्स. पर योर प्राइमरी रोल इज नॉट एज अ लीडर, योर प्राइमरी रोल इज एज अ बैटर, जो आपका फर्स्ट डिसिप्लिन है. तो उस डिसिप्लिन के अंदर रन्स बनाना जरूरी है और ही मस्ट फील द प्रेशर. आई थिंक ही डज ऑलरेडी. अगर पर अगेन इन प्राइवेट he'll say or admit a few things, publicly he has to portray a certain persona, which also is understandable. पर मुझे जो लगता है ना, सी फॉर्म जो है वो रन्स डिपेंडेंट है, और वो रन्स जो हैं वो इस बात के डिपेंडेंट है आप कितना टाइम अपने आप को देते हैं टू स्पेंड ऑन द क्रीज. एंड देयरफॉर आई बेग हिम एक्चुअली, I beg him to bat at number 3 in the first 2-3 games where you find slightly weaker oppositions, and it's not a slight on Surya Kumar the batter, but everybody at some stage needs to get the ball rolling. कहीं से रन्स बनने ज़रूरी हैं. नंबर 4 पे जब अपने आप को धकेलते हैं ना, अभी उन्होंने एक 120 रन की चेज में किया था, he sent तिलक वर्मा ahead. I think the game was in धर्मशाला, and I was like don't do it यार, you give yourself opportunity and time. There is no pressure, there is no pressure of scoring runs, there is no pressure of overs running out. You are chasing a very small total, you are going to win it any which way. Allow yourself some time. तो चाहे वो पहला मैच, I don't know, हमारा पहला मैच आई थिंक यूएसए से है, उसके बाद एक नमीबिया से ही मैच होगा. तो जब होंगे प्लीज बैट एट 3 यार, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का वो जो सेक्रीफाइस कह सकते हैं कि 3 पे खेलते थे, तिलक वर्मा ने दरवाज़ा खटखटाया कि भाऊ मुझे करा दो, भाऊ ने उसको तो करा दी, ही इज़ बिकम एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार, बट सूर्य कुमार यादव हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड. So I sincerely, I mean, I hope, I wish, I beg him to actually bat at 3. 3 नंबर पर भी न्यूजीलैंड के सामने 5 मैच में कर जाए यार, 5 मैच में बैट एट नंबर 3. आई कैन गिव यू इन राइटिंग he'll score runs. But if he doesn't bat at 3 and he continues to float around at 4, 3 out of 5 times, he won't have the time. He won't have the luxury of time to actually pace an innings. तो कभी कभी जब फॉर्म से आप जूझ रहे होते हैं, you want a little bit of cushion, and there is, it's not an insult, it is not a slight, it is what you deserve and you should get it. So ये न्यूजीलैंड छोड़ो, यूएसए को, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैच, बैट एट 3. फाइनली एक और वर्ल्ड कप है, अंतिम सवाल बिफोर आई क्लोज विद आवर कॉन्क्लेव. इज द अंडर 19, 3 वर्ल्ड कप इस बार, अंडर 19, T20 एंड विमेन T20 ऑल्सो. आयुष एंड वैभव विल ऑब्वियसली बी द साइनोशर ऑफ अटेंशन. मैंने वैभव का वो एशियन कप वाला देख के ये कहा था कि देखो यार, इतना टैलेंट, वन ऑफ द बेस्ट बन सकते हो, थोड़ा सा सबर कर लो, थोड़ा सा एग्रेसिव कम हो जाओ तो रन्स में अपना कर लो. People were saying, अरे आप क्यों बोल रहे हो? Because I want him to be as good as a Tendulkar. I want him to be as good as a Kohli and lead India and take India to greater heights. इसीलिए यही अपना काम है और यही काम हम लोग कर रहे हैं. But under 19, are you giving us a chance? Difficult conditions, Zimbabwe and Namibia, but it is a decent side. I like Deepesh Devendra. I mean, from what I've seen in these last few games, I like obviously Vaibhav. I think Ayush has talent. Where do you stand on that? No, it's a good team. It's a good team. We have a good chance. Again, winning a World Cup needs a lot more. Everything needs to come together. See, India has also, there was a time when all of us were obsessed with the under 19 success, to the extent that we were quite okay, happy that one guy plays 2 World Cups, 3 World Cups. We were all okay with that. कि चलने दो, इट्स ओके, कि अच्छा कर रही है भारतीय टीम, अच्छा कर रही है. सब कॉन्टिनेंटल कल्चर था, जिसमें वी वर ऑल ऑब्सेस्ड विद द यंगर प्रोडिजीज टू कम एंड टेक सेंटर स्टेज एंड एक्चुअली प्ले फॉर इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट एट द हाईएस्ट लेवल. सो दैट वाज द कल्चर इन सब कॉन्टिनेंट अर्लियर, बट वी हैव पिवटेड फ्रॉम दैट. सी अभी हमने पिवट किया है कि वी डोंट अलाउ एनीबडी टू प्ले 2 वर्ल्ड कप्स. हम कहते हैं भैया एक खेलो एंड दैट्स गुड इनफ, अगला तुम किसी और को खेलने का मौका दो, वरना सरफराज तो 3 खेल गए या 2 खेल गए, जो भी था. सो वंस यू पिवटेड इन दैट डायरेक्शन, आई थिंक
winning the World Cup is a great thing. I mean, you go ahead and you win it like हमारी लड़कियों ने भी किया अंडर 19 स्टेज पर शेफाली के साथ. So which is a great thing. So I'm optimistic about it. There will be competition. Conditions are going to be different. But अंडर 19 लेवल पे ना बोरिया मेरा जो सोच रहती है उसकी सक्सेस का यार्ड स्टिक या पैरामीटर कैन नॉट बी द ट्रॉफी. यू हैव टू लुक स्लाइटली थोड़ा सा विजन को बड़ा करना पड़ेगा कि कितने लड़के तैयार हो रहे हैं, कौन सा वो लड़का है जो आगे जाके भारत के लिए खेल सकता है. सी विश्व कप अगर हम जीते थे वहाँ पे पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल वाला जो विश्व कप था तो उसमें शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ इज स्टिल सर्चिंग द राइट डायरेक्शन एंड रेस्ट देयर आर वेरी फ्यू नेम्स दैट कम टू योर माइंड. सो यू वांट कि ये जो जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स हैं ये यहाँ से ग्रेजुएट हो एंड अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली गेट इनटू मेन स्ट्रीम क्रिकेट एंड दे एक्चुअली कम नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ द सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम. सो अंडर 19 वर्ल्ड कप while if they were to win it I'll actually be the first one to tweet and talk about it and whatever because that gives me a lot of pride and joy कि मेरी भारत टीम अगर अच्छा करती है तो there is no bigger joy for me when India does well. उससे बड़ा कुछ नहीं है. पर I'm okay. I'm looking at under 19 cricket, age group cricket as a feeder service, feeder system कि यहाँ से हमें खिलाड़ी मिलेंगे. I'm not going to judge cricketers on this. I want them to just show me the sparks and signs that these guys can actually represent India at the highest level. Thank you very much. Thank you so much. It's been a pleasure.